a laboratory investigation has confirmed that contaminated drinking water caused the vomiting and diarrhea outbreak that had claimed the lives of at least 13 people and affected over 200 residents in Bhagratpura area of Indore. Now, the outbreak was raised serious questions about drinking water safety in Indore, which ranked India's cleanest city for 8 consecutive years. Now, the water supplied through the Narmada pipeline in Bhagratpur was being tested, and report reveals the presence of bacteria such as fecal coliform bacteria, E. coli bacteria and the Klebsiella in the samples. Now, these bacteria can cause vomiting and diarrhea. According to reports, some samples also contained elements of Vibrio cholerae, which are found in cholera. So far, 80 samples have been tested and some of the reports have been received. According to sources, the detailed lab reports may take up to 1 to 2 days to arrive. Meanwhile, local BJP councillor Kamal Waghela has written a letter to Chief Minister Mohan Yadav alleging grave criminal negligence and administrative delays by civic officials which led to the tragic deaths. जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद हम लगातार नर्मदा का भी सप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 5 बजे से कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है इसको बॉईल करके पिए। वो लगातार लोग उपयोग कर भी रहे हैं, उसके बाद कम भी हुआ। साथ साथ ऐसा लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, भय भी रहा कि नर्मदा से के पानी से कहीं न कहीं उनको संकोच हो रहा था, तो हमने दूसरी टंकी से 50 टैंकर बुला के जगह जगह हम सप्लाई करवा रहे हैं। उसके माध्यम से जनता की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी आज सुखद है कि मरीज भी कम है, डेथ भी नहीं हुई, भगवान की कृपा भी है। और हमारे लगातार स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रही, सैंपल ले रही। मेरा पत्र है, मैंने शिकायत करी थी और मुझे 3 साल पहले यहाँ पर जब मैं पार्षद चुना गया तो चुनाव में विषय था हमारा मुख्य रूप से कि हम जीतेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदलेंगे, क्योंकि उस समय जगह जगह ड्रेनेज की लाइन, नर्मदा की लाइन टूटी फूटी थी और वही पत्र मैंने 3 साल पहले भी दिया था। Meanwhile, the National Human Rights Commission has taken so moto cognizance of the media report that at least 13 people have died after allegedly consuming the contaminated water in Bhagratpura area of Indore district. According to the NHRC, the residents had been complaining about the supply of contaminated water supply for several days, but no action had been taken by the authorities. The youngest victim of the contamination is a 6-month-old Avian Sahu. Avian was born after 10 years of waiting. According to the family, the infant developed diarrhea on December 26th and was taken to a local doctor. He appeared stable for 2 days, but on the night of December 29th, the child developed high fever, began vomiting and died at home. बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया वो, घर पे शांत हो गया था बच्चा। कितनी तारीख को? 29 तारीख को। कितने साल बाद आपके वहाँ औलाद हुई थी? 10 साल बाद। तो आपने एडमिट नहीं करा या प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? नहीं एडमिट, अब नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो यही नॉर्मली सोचते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अपना क्लिनिक है यहाँ पर, डॉक्टर सिरोंज करके है, 3 पिलिया पे है, उनको ही दिखाया था हमने। उन्होंने मेडिसिन बच्चे का चेकअप वेकअप करा था और मेडिसिन लिख के दे दी थी। कितनी उम्र थी लड़के की? 6 महीने का था। लड़का था? 6 महीने का था, हाँ लड़का ही था। और कितने बच्चे आपके? एक बेटी है 10 साल की, उसी के बाद ये हुआ था 10 और अभी ये 10 साल बाद हुआ था बच्चा। आपका नाम बताइए। सुनील साहू नाम है मेरा। Now, more than 200 residents have fallen ill with symptoms including vomiting, diarrhea and extreme weakness. Even as residents felt sick, civic apathy from those in power was in full display.
The councillor, in fact, was seen at a park while the municipal water works in charge was seen hosting a food-related event. The images triggered widespread public outrage, with residents questioning the priorities of those responsible for safe drinking water. Residents say that he had repeatedly complained about dirty and foul-smelling water for nearly 2 weeks, but no action was taken. As anger spilled onto the streets, locals confronted senior BJP leader Kailash Vijaywargiya. Residents alleged that Vijaywargiya dismissed their grievances, shrugged off his concerns and left the area on a bike, intensifying public anger. Later, Vijaywargiya assured action would be taken and those responsible would be brought to book. Political sparring, meanwhile, quickly followed after the tragedy. SP Chief Akhilesh Yadav questioned the credibility of Indore so-called cleanliness awards. बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? AIMIM Chief Asaduddin Owaisi also hit out, saying it is shameful for the government cannot provide safe drinking water. इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एमिनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। Meanwhile, the Chief Minister has taken cognizance of the incident, announcing compensation for the families of the deceased and free treatment for all affected. Health teams are conducting door-to-door surveys amid fears that nearly 2,000 residents may have been exposed. My colleague Shubham Gupta in fact joins us. Shubham Gupta, report आ चुकी है वो पानी की टेस्ट के बाद, और उन्होंने बताया कि इसमें जो बैक्टीरिया इस पानी में है वो सुवेज से निकलता है और वो सुवेज लाइन की कंटामिनेशन हो जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज क्या बोल रहा है? देखिए, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। हर कोई एक तरह से जिससे भी सवाल पूछा जाए, अगर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से देखें तो सबसे पहले हमने वहाँ के पार्षद से बात की जो कि बीजेपी के ही हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 6 महीने पहले इसकी शिकायत लिखित में की थी, रिटर्न में की थी। उसके बाद मैं 3 साल पहले भी शिकायत कर चुका हूँ, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये भी पूछा कि क्या हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे मामलों पर, तो उन्होंने उस पर भी सहमति दी। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए जिन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद हम बात करते हैं इंदौर के मेयर की, पुष्यमित्र भार्गव की। इनसे जब सवाल करते हैं तो ये भी कहते हैं कि मैंने तो 6 महीने पहले ही इस बात के निर्देश दिए थे कि जो टेंडर है
वो यहाँ का स्वीकृत किया जाए, मगर अधिकारियों ने स्वीकृत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें अधिकारी बड़ा करप्शन करना चाहते थे। जो परसेंट है 30-40 कौन कितना दे सकता है उसके मुताबिक चल रहा था, इसीलिए ये टेंडर भी नहीं हुआ। आप सोचिए कि अगर 6 महीने पहले ही ये काम हो जाता तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसके बाद बात आती है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, और कैलाश विजयवर्गीय न सिर्फ मंत्री बल्कि जहाँ पर ये घटना हुई है भागीरथपुरा, वहाँ के वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है मंत्री के साथ साथ एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते। उनसे भी सवाल करते हैं तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 6 महीने पहले ये सारी की सारी चीज़ें थी, मगर इस पर काम नहीं किया गया। हमने एक जांच कमेटी बनाई है जो कि जांच पड़ताल कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर अधिकारी और नेता मंत्री कहते नज़र आ रहे हैं कि वो तो हमने कह दिया था, हमने ये कर दिया था। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, मगर उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि 10 लोगों की मौत हो गई है, 31 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, 200 लोगों का इलाज चल रहा है। जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है और उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? क्या सस्पेंड कर देना या तबादला कर देना यही एक्शन होगा? तो देखना होगा कि सरकार ने जो जांच कमेटी बिठाई है उसके बाद उस पर कितना बड़ा एक्शन होता है। ऐसे भी देखना है कि एक्शन किसके ऊपर आपने बताया कि एक्शन हो सकता है। पहले किसने ऐसे प्लान किया कि सूवेज का लाइन और पीने का पानी का लाइन एक ही जगह में है, और किसने ऐसा प्लान किया कि ये 2 लाइन एक ही ऊपर चलेगा, तो इससे ये कंटामिनेशन हुआ है ना। बिल्कुल। हाँ, भागीरथपुरा में जो एक पानी की टंकी है वहीं से उनका पानी सप्लाई होता है तकरीबन 40,000 लोगों का, और वहीं पर एक पुलिस की चौकी है, यहीं पर उनका वॉशरूम बना हुआ है। अब आप देखिए कि उनका जो वॉशरूम का टैंक था वहाँ से भी पानी का रिसाव हो रहा था, और जो सीवेज जो पानी की लाइन जा रही थी उसमें भी एक तरह से फॉल्ट था और वहाँ पर भी वो पानी चला गया। दोनों ही सिस्टम में फॉल्ट था और सीवेज का पानी जो है वो सीधा सीधा चला गया। अब ये लोग लगातार पानी वहाँ पर पीते रहे और इसकी शिकायतें भी होती रही कि देखिए पानी ठीक नहीं आ रहा है। अचानक से जब 25 दिसंबर के बाद हम देखते हैं कि लोग एक के बाद एक एडमिट हो रहे हैं और अचानक से उल्टी दस्त लोगों को हो रहे हैं, मौतें हो रही है। 5-6 मौतें शुरुआत में हो गई, एक 6 महीने के मासूम की भी इसमें दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है और इसमें भी आप देखिए कि डेथ के जो आंकड़े थे वो भी सरकार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी। आप कल का दिन देखेंगे, मुख्यमंत्री से शुरू करें तो उन्होंने कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मेयर की बात करें, उन्होंने कहा 7 लोगों की मौत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कल कह दिया कि 9 लोगों की मौत हुई है। शाम को कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। उनके पार्षद कह रहे हैं कि 10 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो चीज़ें हो रही है कि एक चीज़ कम से कम तय तो कर लें कि क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है। और दूसरी बात, कल जब देखा हमने कि 2 लाख रुपए का चेक लेके गए, लोगों ने मना कर दिया तुरंत कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको लाना ही है तो जो चला गया है उसे लेकर आ जाइए। बड़ी बात यहाँ पर यही है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो 6-7 सालों से नंबर 1 है, वहाँ पर दूषित पानी के चलते लोगों की मौत हो जाती है। हम सुनते हैं कि सरकार कैंपेन चलाती है कि जल ही जीवन है, इसे बचा कर रखें। यहाँ पर तो जल मृत्यु बन गया है। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें अब ज़रूरी है कि सरकार कम से कम उन अधिकारियों को जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया उस पर कोई ठोस कार्रवाई तो करे जिससे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो। Well, thank you, Shubham, for in fact joining us with all those details.